Hello students, welcome you all in second lecture of basic concepts of organic chemistry. In lecture 1 we all have studied up to the classification of organic compounds, and we were studying in lecture 1 what do you mean by functional group, and you all have studied about the characteristics of functional groups. So now today's we study about the classification of organic compounds based on functional group. Listen properly. On the basis of functional group, organic compounds have been classified first in alkane. So, in alkane. Now here we study in detail about alkanes. Its general formula is CnH2n plus 2, where N is equal to 1, 2, 3 and any positive integer. First point. Second point, generally alkane is represented as R single bond H. Third point, it has no functional group. No functional group. यानी अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, जबकि आप देख रहे हैं ना, इसे आप फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ये पहला अल्केन को ही क्लासिफाइड किया गया, अल्केन में ही क्लासिफाइड किया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को. इट हैज नो फंक्शनल ग्रुप. फोर्थ, इट इज very less reactive at ordinary temperature. At ordinary temperature, due to absence of फंक्शनल ग्रुप. मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था अंडर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है जिसमें वो प्रेजेंट होते हैं, और अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप होते नहीं है. इसलिए अल्केन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर वेरी लेस रिएक्टिव होता है. तो आप ऐसा कर सकते हैं, यदि कोई आपसे ऐसा क्वेश्चंस करे अल्केन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव भाई, तो आप कह सकते हैं अल्केन हैज नो फंक्शनल ग्रुप, और इन एब्सेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप alkenes are very less reactive at ordinary temperature. Or for very less reactive, a word is used, that is paraffin. Paraffin stands very less reactive, and very less reactive कौन है? alkenes. और very less reactive के लिए क्या यूज किया गया? paraffin. That's why we can say that alkanes are said to be paraffins. So next point, fifth one is alkanes are called paraffin hydrocarbons. This one is called paraffin hydrocarbons. Next point. Six points. Types of hydrogen in alkane. Types of hydrogen in alkane. Generally, alkane has only three types of hydrogen. Three types of hydrogen. अभी कौन कौन होते हैं थ्री टाइप्स? फर्स्ट, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन
and tertiary hydrogen. So there are three types of hydrogen in alkane. Next, seventh, types of carbon. Types of carbon in alkane. Alkane has four types of carbon. Primary is called 1 degree, secondary is said to be 2 degree, and tertiary is also called 3 degree. So alkane has three types of hydrogen: primary hydrogen, secondary hydrogen, and tertiary hydrogen. But how many types of carbon in alkane? So only four types of carbons are in alkane: 1 degree carbon, 2 degree carbon, 3 degree carbon. आप यहाँ देख सकते हो tertiary carbon, and one more carbon is there, 4 degree carbon. This one is called quaternary. सो अल्केन में थ्री टाइप्स के हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन फोर टाइप्स के कार्बन होते हैं. अब ये कैसे होते हैं मैं आपको पहचानना सिखाता हूँ. इसके लिए मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ. ये कोई मॉलिक्यूल है अल्केन का. अब हमें डिग्री बतानी है, तो सबसे पहले 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन को पहले पहचानना सीखते हैं. उसके बाद में फिर हाइड्रोजन को सीखते हैं. तो कार्बन कैसे पहचानेंगे? पहचानने के लिए आप इस कार्बन एटम को देखिए जो CH3 के साथ में प्रेजेंट है. इस कार्बन एटम की डिग्री हमें बतानी है, तो आपको ये देखना है कि इस कार्बन एटम से डायरेक्टली और कितने कार्बन अटैच्ड. जैसे आप देखो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है डायरेक्टली, लेकिन एक ही कार्बन ये वाला अटैच्ड है. तो इस कार्बन से एक ही कार्बन अटैच्ड है डायरेक्टली, तो ऐसा कहेंगे इसका यह जो कार्बन है वो 1 डिग्री का है. यानी कोई कार्बन एटम डायरेक्टली और जितने कार्बन एटम से अटैच्ड होगा वह उस कार्बन का डिग्री होगा. जैसे इस कार्बन एटम की डिग्री हमें बतानी थी, तो आपने देखा इससे डायरेक्टली एक कार्बन एटम अटैच्ड है, इसलिए इसका डिग्री 1 हो गया. अब इससे डायरेक्टली देखिए 1, 2, 3 अटैच्ड, तो ये 3 डिग्री के कार्बन हो गए. अब बताइए इसका डिग्री, यह भी 1, 2, 3 से अटैच्ड है, तो ये 3 डिग्री. इस कार्बन को लीजिए, ये डायरेक्टली इससे अटैच्ड है 1 डिग्री. इसको लीजिए 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री. आप इसे देखिए ये कितने से अटैच्ड है 1, 2, 3 एंड 4, तो दिस वन इज 4 डिग्री कार्बन. शायद आप लोग समझ गए होंगे कि कार्बन की डिग्री कैसे पहचाना जाता है. कोई भी कार्बन एटम की कितने डिग्री है ये पहचानना हो तो आपको ये देखना होगा कि उस कार्बन एटम से डायरेक्टली और कितने कार्बन एटम अटैच्ड है. जितने कार्बन एटम और अटैच्ड होते हैं वही उसका डिग्री होता है. नेक्स्ट अब हाइड्रोजन की डिग्री देखते हैं. तो हाइड्रोजन का कोई टाइप नहीं होता. मैं क्या बोल रहा हूँ? हाइड्रोजन का कोई टाइप नहीं होता, लेकिन हमने ऊपर आपको लिखा रखा है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन. तो आप ऐसा सोच रहे होंगे सर ये क्या कैसी बात आप कर रहे हैं. ऊपर में आपने लिखा है, पहले लिखा है कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ आप कह रहे हैं कि हाइड्रोजन का कोई टाइप नहीं होता. हाँ मैं सही बोल रहा. कैसे बोला आप थोड़ा समझिए. जैसे कोई एक छोटा बच्चा है आपके पास, उसका कोई जाति नहीं होता. यदि उसे मुस्लिम समुदाय में रख दिया जाए तो मुस्लिम हो जाता है. उसे हिंदू समुदाय में रख दिया जाए तो वो हिंदू हो जाता है. उसे क्रिश्चियन समुदाय में रख दिया जाए तो वो क्रिश्चियन हो जाता है. ठीक उसी तरह हाइड्रोजन का कोई टाइप नहीं होता है. हाइड्रोजन जिस टाइप के कार्बन से अटैच्ड होता है वही उसका टाइप होता है. जैसे अब आप देख रहे होंगे 4 डिग्री कार्बन ये है, इसके पास कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं. यानी
4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। दूसरे कार्बन की 4 वैलेंसी होती है मैक्सिमम। ऑल 4 वैलेंसीज ऑफ दिस कार्बन एटम्स आर सेटिस्फाइड विद द 4 अदर कार्बन एटम्स, so there is no more valency of this carbon atom that is required to satisfy the hydrogen atom. That's why we can say that 4 degree carbon has no hydrogen, that it means 4 degree hydrogen is not possible. Now see 1 degree hydrogen, 1 degree carbon has hydrogen, यानी 1 degree hydrogen होता है। यहाँ देखिए ये 3 डिग्री कार्बन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है। यहाँ भी देखिए 3 डिग्री हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा और भी बढ़ा देता हूँ, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, तो इसकी डिग्री अब 2 डिग्री हो जाएगी और ये 1 डिग्री हो जाएगा। तो आप देखिए 2 डिग्री कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकते हैं, लेकिन कार्बन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री भी हो सकते हैं। मैं समझता हूँ आप ये हाइड्रोजन और कार्बन की डिग्री आप समझ गए होंगे। मैं असाइनमेंट दूंगा, उसमें आप क्वेश्चंस करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब आप इसके बाद हेडिंग डालिए रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। आपने देखा अल्केन में 3 ही टाइप के हाइड्रोजन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन। तो इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो इस ऑर्डर में होती है। 3 डिग्री हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री हाइड्रोजन, देन 1 डिग्री हाइड्रोजन। सो दिस वन इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको ऐसा लगता होगा कि सर इस रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन का यूज क्या होता है, इसको कैसे हम लोग समझेंगे, इसको हमें याद करने से, इस ऑर्डर को याद करने से हमें क्या फायदे होंगे, इससे इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो मैं उसको अब आपको समझाता हूँ, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान से देखिएगा। इसे समझने के लिए मैं कोई 3 टाइप्स का अल्केन मैं लेता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ, देखिए HCH H और H। ये फर्स्ट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसका नाम है मीथेन। इस मीथेन का हमें ऑक्सीडेशन कराना है। क्या कराना है? ऑक्सीडेशन। और आपने पढ़ रखा है 19 क्लास में, यानी प्रीवियस क्लास में, कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का एडिशन होता है किसी कंपाउंड में। और हमें यहाँ इस मीथेन का ऑक्सीडेशन कराना है, यानी हमें मीथेन में ऑक्सीजन को जोड़ना है। अब थोड़ा सोचिए, आपको मीथेन में क्या जोड़ना है? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीडेशन आप करा रहे हैं और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा होती है और ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट है। अब आप थोड़ा सोचिए, जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट होगा वो किसके साथ अटैच होना चाहेगा? नेचुरली आप बता देंगे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ अटैच होना चाहेगा। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, शायद आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बारे में जानकारी नहीं हो, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर मैं यहाँ आता हूँ। राइट, तो देख लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव।
सबसे पहली बात आप याद रखेंगे, मैं शॉर्ट में भी बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव वो होते हैं, मेटल को छोड़ दीजिए तो वो इलेक्ट्रोनिगेटिव भी हो जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन। लेकिन अब कुछ बच्चों को ये इसमें आएंगे नॉन मेटल्स। अब शायद कुछ बच्चों को अभी ऐसा लग रहा होगा, सर जी मेटल हमको याद नहीं है, हम तो 10 क्लास से आए हैं तुरंत में, अभी हमें वो मेटल याद नहीं है, नॉन मेटल याद नहीं है। तो मत घबराइए, मैं हूँ ना। इसके बहुत आसान सा तरीका है। जैसे किसी का भी आप नाम लीजिए, यदि नाम लेने के बाद उसका नाम लीजिए, जैसे मान लेते हैं, देखिए मैंने CU लिखा, इसका लैटिन नेम क्या है? क्यूप्रम। इसका लैटिन नेम क्या है? क्यूप्रम। आप ले लीजिए Na, इसका नाम क्या है? सोडियम। तो जिस किसी एलिमेंट का इंग्लिश नेम आप लिखते हो या लैटिन नेम आप लिखते हो, तो इंग्लिश नेम या लैटिन नेम दोनों में से किसी एक में भी यदि लास्ट में आप EM यूज करते हैं या EM आ जाता हो, EM या M आ जाता हो, तो वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं। जैसे अब आपको कुछ याद करने की जरूरत है, जैसे मैं बोल रहा हूँ सोडियम, लास्ट में EM आ रहा यानी वो मेटल है। कैल्शियम EM है, मेटल है। अब मैं उसको भी बोलूंगा जिसका नाम आप नहीं सुना होगा ना, वो उसको भी आप बताइए। जिरकोनियम, बताइए मेटल है कि मेटल? हाँ राइट, मेटल है, क्योंकि लास्ट में EM आ रहा है। तो अब शायद मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग मेटल और नॉन मेटल समझ गए होंगे। तो अब हम लोग यहाँ आते हैं इस रिएक्शंस को। हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। तब आप यहाँ देखिए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। कैसे? इसका नाम है ऑक्सीजन। EM है क्या? नहीं। EM है क्या? नहीं। तो क्या है? नॉन मेटल। और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव और इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव के साथ में ऐड होना चाहते हैं, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल होते हैं और साथ साथ हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ना चाहेगा? हाइड्रोजन के साथ। लेकिन यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है, तो किसी एक हाइड्रोजन के साथ ही हाइड्रोजन है। चलिए इसको ऐड कर दीजिए। H C H OH, यहाँ H। अब आपको ऐसा लग रहा हो, थोड़ा सा सोचिए, ये मीथेन था, किस में चेंज हो गया? अल्कोहल में। ठीक है, यानी जब आप अल्केन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वो अल्कोहल में चेंज हो जाता है। खैर इसको हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हमारा टॉपिक नहीं है। अब देखिए इस CH4 में क्या ये जितने हाइड्रोजन है सब एक ही टाइप के थे? हाँ, एक ही टाइप के थे। लेकिन अब ये दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जैसे अब इसकी भी ऑक्सीडेशन आपको करानी है। अब आपको तो यहाँ ऐसा लग रहा होगा, यहाँ एक ऑक्सीजन था तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ में सर ने जोड़ दिया। अब यहाँ पर सर हमसे जो एग्जाम्पल दिए पहले कितना आसान दिए, उसमें एक ही टाइप का हाइड्रोजन था, आप सर थोड़ा इसको डिफिकल्ट बना दिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। आप देखो इसको डिग्री चेक करो। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1। अब आपने पढ़ा था रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? 3। यहाँ है क्या? नहीं है। 2 डिग्री यहाँ है क्या? हाँ ये है ना। तो यह भी हाइड्रोजन रिएक्टिव है, यह भी हाइड्रोजन रिएक्टिव है, लेकिन ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। यानी अब ना यहाँ ये ऑक्सीजन ऐड होगा ना यहाँ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा ऐसा HCH HCH और यहाँ OH, सिंगल बॉन्ड CH और H। बात समझ में आ रही है? यहाँ क्यों ऐड हुआ? क्योंकि इसके पास 2 डिग्री हाइड्रोजन है। तीसरे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, उसको देखिए। जैसे ऐसा हो
CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका भी आपको ऑक्सीडेशन कराना है, लिखिएगा ध्यान से। इसमें पहले डिग्री चेक कीजिए, क्या ये 1 डिग्री है, वेरी गुड, 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1। बताइए तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन कौन है, ये 3 डिग्री वाला। ये ऑक्सीजन कहाँ ऐड होगा, यहाँ ऐड होगा, ये होगा CH3, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए OH, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इससे ये पता चला कि यदि आपको अल्केन का रिएक्शंस कराना है तो कौन सा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शंस में और कौन सा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो आपको इससे पता चलेगा, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन से। सो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, विदाउट नोइंग अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन विच आर प्रेजेंट इन अल्केन, नॉट ओनली इन अल्केन, इन ऑल कंपाउंड्स, बट our topic is today's our topic is alkane। इसलिए अल्केन में जितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी यदि पता नहीं हो तो आप किसी भी रिएक्शंस को कराने में सक्षम नहीं होंगे, और आप ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद भी ये बोलेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस काफ़ी डिफिकल्ट है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में आप रखेंगे। तो इसे जानने के बाद में देखिए आप कहाँ किसको जोड़ना है, ऐड करना है, आप इससे क्लियर हो जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये सीखा रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, और रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन का क्या इम्पोर्टेंस होता है, उसका क्या यूजेज होता है। आपने ये देखा कि यदि आप रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन को अच्छी तरह नहीं समझते हैं तो आप रिएक्शंस कराने में असमर्थ हो जाएंगे, इसलिए इसे ध्यान में रखना है। चलिए अब इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अल्केन के बारे में आप पढ़ रहे हैं, आपने देखा अल्केन में फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, वो सब भी नहीं होता है, लेकिन अब थोड़ा सा देखिए, अभी हमने आपको बताया जितने भी आईआईटी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो जनरल आप पढ़ते हैं वो नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चंस आए थे आईआईटी के ही क्वेश्चंस है, जैसे आपको ये कोई पूछ दिया जाए कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्केन क्या है बताइए, फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्केन आपसे पूछ दिया जाए, ये नेक्स्ट पॉइंट है। अब आप भी बोलोगे सर आप कैसे आप कर रहे हैं, पहले आपने बोला फंक्शनल ग्रुप नहीं है, पहले आपने जिस तरह की टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बता दिया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बाद में आपने बोला इसका कोई टाइप नहीं होता। ठीक उसी तरह सर आप कर रहे हैं यहाँ, आपने बोला कि अल्केन का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, और फंक्शनल ग्रुप नहीं होने के कारण अल्केन्स जो होते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे वेरी वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पैराफिन हाइड्रोकार्बन्स। तो जब आपने बता दिया अल्केन हैज नो फंक्शनल ग्रुप, due to absence of this functional group they are very very less reactive called paraffin hydrocarbon, तो फिर सर यहाँ कैसे आ गया, how does it come functional group of alkane, how will I write it? तो घबराइए नहीं, अचंभित नहीं हुए, थोड़ा सोचिए। आपसे कहा जाए कि आपके घर का पीएम कौन है, तो आप क्या बताएंगे, थोड़ा सोचिए। क्या पीएम किसी घर का होता है, नहीं, तो क्या होता है, कंट्री का होता है। लेकिन कंट्री का पीएम का काम क्या होता है, कंट्री का जो पीएम होता है उस कंट्री का मेन पर्सन होता है, तो घर का जो मेन पर्सन है दैट इज लाइक अ पीएम। तो आपसे पूछा जाए कि आपके घर के पीएम का नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, वी हैव टू टेल द नेम ऑफ मेन पर्सन ऑफ योर होम। ठीक उसी तरह
आपने पढ़ा, मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होता है उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। सेकंड पॉइंट में हमने आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रुप किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन अब थोड़ा सोचिए, अभी आपने रिएक्शन कराया था ऑक्सीडेशन, उसमें ऑक्सीजन कहाँ जाकर ऐड हुआ था? कार्बन में या हाइड्रोजन में? हाइड्रोजन में। यानी अल्केन का कौन सा एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया? हाइड्रोजन। क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं। लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही ना रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। हाँ, तो अल्केन का कौन सा एटम्स पार्टिसिपेट किया केमिकल रिएक्शंस में? वो था हाइड्रोजन। That's why we can say that alkane has no functional group. But hydrogen atom which are present in alkane, we have like a functional group. So we can say that hydrogen atom is considered as a functional group of alkane. Very good. So we can say that hydrogen atom is considered as a functional group of alkane. In spite of so, it has no functional group. So remember it, alkane has no functional group. इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं होने के कारण ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर में काफ़ी लेस रिएक्टिव होते हैं, जिसके कारण इसे पैराफिन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन यदि कोई क्वेश्चन कर दे कि अल्केन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन। क्यों बोलेंगे? इसलिए कि फंक्शनल ग्रुप किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है भाई, और जब अल्केन का रिएक्शन कराते हैं तो इसके हाइड्रोजन ही केवल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब it has no functional group, but hydrogen atom is also considered as a functional group of alkane. Understand? मैं समझता हूँ आप इसे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब हम लोगों ने पढ़ लिया कि अल्केन का फंक्शनल ग्रुप। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन अल्केन। हाइब्रिडाइजेशन of carbon atom in alkane. हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है, लेकिन शायद अभी आप केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों ने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं इसी तरह आपको सिखा दूंगा। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन अल्केन हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कैसे करेंगे मैं आपको थोड़ी बताता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ढूंढना है। आप इसके बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, एवरीथिंग आई विल टेल यू। लेकिन अभी आपको यहाँ ध्यान देना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पहले हमें ढूंढना है। दूसरा ढूंढना है नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन, इसको हटा दीजिए, अल्केन के बारे में पढ़ना, इसलिए ज़्यादा भी टेंशन मैं आपको नहीं दूंगा, जब मैं पढ़ा दूंगा तो फिर मैं कराऊंगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ढूंढना है। अब मान लेते हैं आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ढूंढ लेते हैं। यदि ये सिग्मा बॉन्ड दो भी हो सकता है, ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये 3 सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, और ये 4 सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं। 3 तरह के पॉसिबिलिटीज हुआ। मैं सिग्मा बॉन्ड ढूंढना सिखाऊंगा आपको, पहले आप देख लीजिए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपको ढूंढना है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए, नॉट ओनली अल्केन, कहीं भी आपको और भी कहीं दूसरी जगह ढूंढेंगे तो और भी थोड़ी कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो आपको मैं अच्छी तरह समझा दूंगा। अभी इतना ही देखिए। तो ये सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए ढूंढना है। अब ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं।
तब जब 2 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, जब 3 है तो sp2 होगा, जब 4 है तो sp3 होगा। इसको आप ऐसे दिमाग में रखिए, sp1 2 है तो s से आपको स्टार्ट करना और p में जाना है। तो s तो एक लिख दिया आप, यहाँ 2 टोटल था तो p का 1 लेंगे तो टोटल 2 हो जाएगा। 3 है तो sp2 2 और s1 3, 4 है तो sp3 क्योंकि s का 1 3 4 हो गए, यहाँ 1 2 3 हो गए, 1 1 2 हो गए। तो ऐसे यदि आपको पता चल जाए कि उसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं तो आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं, इसके पहले एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिए। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। कहीं भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई देता हो तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होते हैं। चलिए अब हम लोग अल्केन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। कार्बन का मैं अल्केन लिख रहा हूं, देखिएगा मैंने इसको ऐसे ही से लिखा है कि जैसे मान लिया हमने लिख दिया CH2 तो इसको भी आप लिख सकते हैं CH3। तो CH3 का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट करके लिख दिया। यहाँ हमने नहीं लिखा ताकि यहाँ हमें समझाने में आसानी हो आपको। तो आप देखिए यदि CH3 है इसका मतलब C और 3H के साथ में 3 सिंगल बॉन्ड है, और आपने देखा सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा। तो देखिए यहाँ 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये 4 सिग्मा, यहाँ भी देखिए 1 सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ आप देखिए यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा। इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन है तो इसी तरह 2 होंगे तो 2 सिग्मा, एक 3 सिग्मा, एक 4 सिग्मा। यहाँ भी देखिए 3 हाइड्रोजन के साथ है इसके जैसा तो 3 सिग्मा, एक 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा में हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो यहाँ देखिए यहाँ भी 4 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ भी 4 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ भी 4 सिग्मा। देखिए इसके सराउंडिंग देखिए 4 सिग्मा 1 2 3 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ भी 4 सिग्मा sp3, यहाँ भी 4 सिग्मा sp3। यानी in alkane hybridization of all carbon atoms is